Good morning, students. Good morning to SP classes. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. Today we will discuss about the procedure for incorporation of company. In previous lecture, we have already discussed about the incorporation of company. What is company? What are the characteristics of company? Okay. So now today in today's class, we will learn about the procedure for incorporation of company. How can a company be set up or a company can be commenced? What are the procedures? Okay. So moving on, the procedure for incorporation of company. Okay. So what are the process by which a company can be registered? So first process is first what do you mean by the procedure for incorporation of company? For incorporation of company, many legal provisions are to be followed. Okay. So incorporation procedure is expensive and complex. So there are some of the following incorporation procedures by which a company have to face on, or by which procedure or by which activities they have to carry out. So the incorporation of company means it is a legal procedure which every company have to follow for the incorporation of a company or to get a certificate of incorporation. First is preliminary stage. Okay, so in the process of incorporation of company, first is preliminary stage, means the basic stage by which a company can be registered, or what are the activities to be performed by the company to be registered. So first is preliminary stage. In preliminary stage, the first point which has to be uh, taken as consideration is the idea for the promotion of a company. If we want to start a new company, we have to get an idea or a layout or a rough picture by which we can develop a company or we can start a business. Okay. So the idea of the for the promotion of a company business is the idea is the seed of a business. Seed means कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट को उगाने के लिए हमें उसकी सीड्स की ज़रूरत होती है. जब कोई बीज हम पौधा उगाने के लिए हमें बीज को पहले जर्मिनेट करना पड़ता है, सीड्स को हमें कहता है. वैसे ही कंपनी है. कंपनी जब हम सेटअप करेंगे, हमने अपने प्लान में कंपनी हमने सोच लिया, हम अपने एक इनकॉन्शियस माइंड में हमने सोचा है कि हम एक कंपनी ओपन करेंगे. कंपनी ऐसी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रेडिंग होगी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ होगी, जो भी कंपनी होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें एक आइडिया सोचना पड़ेगा कि हम कैसी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कैसे कंपनी हम ओपन करेंगे. सो एंड द promoter who conceived the idea uses his imagination and creativity to give it a concrete form, and he is also ready to bear many risks. ओके. सो कौन करता है ये आइडिया, किसके पास आता है? ही इज़ नोन एज प्रमोटर. ठीक है. तो प्रमोटर कौन होता है? ही कन्वर्ट्स आइडिया इनटू इम्प्लीमेंटेशन बाय मोबिलाइजिंग मैन पावर, मटेरियल्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस. ठीक है. तो प्रमोटर कौन होता है? वही आइडिया लेके आता है जो मैन एंड मटेरियल को मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करता है या फिर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से कोई भी बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकती है या फिर कोई भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस हो सकता है. ठीक है. दस कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. कंपनी इज नोन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर. कंपनी को क्या बोला जाता है? ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर. वाई? बिकॉज द प्रमोटर इज गिविंग द आइडियाज और ही इज taking the care of ideas or the plans or the layout for the company. ठीक है. वो एक क्या बोलते हैं जिसको हम एक सेटअप लेता है, एक स्टार्टअप लेता है, जिसकी वजह से हम कोई भी कंपनी को सेटअप कर सकें. तो सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. जब हमारे पास आइडियाज़ हम रिकवर करते हैं, हम आइडियाज़ लेके आते हैं. ठीक है. कोई एक लेआउट हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सोचते हैं कि हम कंपनी कैसे ओपन करेंगे. दैन द सेकेंड वन इज़ टू प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, so it considers the idea and its possibility. Okay. The economic liability is checked out with the help of experts. Like, if we want to open a company, what is our liability, what funds we are having to open a company. हमें फंड चाहिए, हमें फिनेंस की ज़रूरत होती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए. ओके.
So the expenditure and income estimate is taken, and if the result is satisfactory, further detailed survey is conducted. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कंपनी का क्या है, कंपनी को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स उसमें लागू होंगे, दैट वी हैव टू फेस ऑन. सो आफ्टरवर्ड द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन. एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी में तो हमने सिर्फ ये देखा कि कंपनी हम सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमें क्या फ़ंड की ज़रूरत है. एक्सपोर्ट से हम आइडियाज़ लेते हैं, लाइब्रेरी की नॉलेज लेते हैं. ओके, तो थर्ड में एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, देयर कैन बी एन एडवर्स रिजल्ट इफ़ थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अंडरटेकन. अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, अगर हम चेकआउट नहीं करते, हम अपना एक लेआउट नहीं प्रिपेयर करेंगे, तो हमें एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा. सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लीगल प्रोविजंस, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, द डिमांड सप्लाई सिचुएशन and the availability of auxiliary services etc. are carefully checked. ओके, तो हमें क्या क्या चेक करना है. उसके बाद अपने पास हमारे पास फंड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमारा एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन में हम क्या चेक करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, लीगल प्रोविजंस क्या है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस टू स्टार्ट अप अ कंपनी, हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी गेट, और द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. Okay, so these investigation have to be done by the company at the time of incorporation. Okay, तो जो भी उसके ओनर्स होंगे, जो भी प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उसको क्या ये सब आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. एंड द ऑक्सिलरी सर्विसेज आर, ऑक्सिलरी सर्विसेज मीन्स विच हेल्प्स द ट्रेड एंड बिजनेस टू ग्रो. ठीक है, ऑक्सिलरी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, लाइक बैंकिंग, like transportation, like communication. Okay, these are the auxiliary services. Okay, so with the help of auxiliary services, a business or a company can be established with the process of the plan or the idea of a promoter. Okay, तो प्राइमरी और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन में हमारा पूरा हम लीगल भी एज वेल एज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं. नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ, विच इज़ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज. मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज मीन्स, अब हमने प्रमोटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रमोटर का मीनिंग हमने पढ़ा था कि प्रमोटर क्या कौन होता है, हु कन्वर्ट्स द आइडिया एंड इम्प्लीमेंट द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, जो अपने आइडिया को कन्वर्ट करता है और रिसोर्सेज को एक मूवमेंट या फिर उसको एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है कि बिजनेस को हम कैसे एक्टिवाइज करें. ओके, so the arrangement of resources like equipment, machinery, tools, land and the contract and formalities will be undertaken. ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम क्या क्या करेंगे. ठीक है, क्या डिसाइड होता है उसमें, जिस समय जो भी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी को मिलता है, तो उस वक्त वो क्या प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेंगे, प्रोजेक्ट को कैसे एक्टिवाइज करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे क्या एक्टिविटीज़ करनी है, लेबर्स को क्या वर्क देना है, क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, दैट इज़ टू बी डन with at the time of mobilization of resources. Okay, now the fifth point is arrangement of finance. Arrangement of finance is because the finance is the lifeblood of business. Without the finance, and any business cannot make their activities, or the profit earning cannot be done in a business, or the investment purposes cannot be done in the organization. जब तक हमारे पास finance नहीं होगा, जब तक हमारे पास money नहीं होगा, तो economic activities को हम कैसे carry out कर सकते हैं. So the type of activity and the amount of funds required by the company as well as the sources of capital will be considered. ठीक है, तो हम अपनी जो एक्टिविटी है, जो विदाउट फंड वी कैन नॉट स्टार्ट अप अ बिजनेस और वी कैन नॉट कैरी आउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो फिनेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. ओके, तो फिनेंस को हम क्या लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं. ओके, जो अपने कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, उसी के स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि विदाउट फाइनेंस अ कंपनी कैन नॉट कमेंस. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिलिमिनरी स्टेज और द प्राइमरी स्टेज और द बेसिक स्टेज. ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टेज को पूरा करने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आइडियाज़ है वो क्लियर करने के बाद, एक लेआउट तैयार करने के बाद कि हम कंपनी कैसे स्टार्टअप करेंगे, क्या कंपनी होनी चाहिए. ठीक है, आफ्टरवर्ड वी हैव टू डिसाइड
or we have to present the incorporation stage. Okay, after the stage, after this preliminary stage, second stage comes, which is incorporation stage. So in incorporation stage, we have to follow, or we have to present, the documents of the company. Documents of the company. Okay, so in this incorporation stage, we have to make the legal requirements for a company in front of the company registrar. ठीक है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, जो कंपनी को रजिस्टर करता है, ठीक है, उसके सामने हमको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं. So in incorporation stage, the first step is memorandum of association. Okay, it is also known as MOA. Okay, so memorandum of association, this is the basic document of the company. ये क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, in which the details, causes mentioned in the defined एंड द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी. तो क्या क्या हम इसमें डिफाइन करते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, डिटेल क्या है कंपनी को ओपन करने की, ठीक है, स्कोप क्या है एक्टिविटीज़ की, जो किस लिए हम कंपनी ओपन कर रहे हैं. ओके, सो इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एड्रेस ऑफ द इस रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है, तो एमओए में क्या इंक्लूड होता है कि कंपनी का नेम, कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस वी हैव टू कंक्लूड इन द एमओए. ओके, so it also establishes the relation between the company and the third parties. Company और third party कौन होता है, the investors, the creditors of a company who provides fund to the company. These are the third parties, and as well as the customers as well. Okay, so memorandum of association is one of the most important basic and primary requirement. ठीक है, memorandum of association क्या हमारा basic और primary requirement है. And memorandum of association states the type of business the company want to undertake. Memorandum of association also have the requirement of a company, why the company is open, for what purpose the company is establishing. Okay, so that is to be fulfilled in the memorandum of association. So this document includes the necessity of a company, why we are opening a company. Okay, now the second one is articles of association. This document defines the rules and regulation for the internal management of the. Okay, जैसे मेमोरेंडम एसोसिएशन में हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, हम बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कंसिडर कर रहे हैं. बट इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज डिस्क्राइब्ड, लाइक इट स्टेट्स द कंपनी पॉलिसीज, means of achieving the objectives, determining the memorandum of association, etc. Okay, so in articles of association, all the rules, all the policies are included in this document. Okay, so for what rules, for what policies, for what discipline or the directions a company will work on. ठीक है, तो उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके जो ओनर्स हैं, वो किस रूल के अकॉर्डिंग, किस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, that is to be included in this articles of association. Now move on to the third point, which is list of directors. As a list of director or the name, address, age, occupation, nationality, etc. of the person who take responsibility for work in as a director for any company, okay, have to submit the documents or have to submit his ओन कंसर्न इन द फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का तो उसको अपना नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन या नेशनैलिटी, ठीक है, दिस डिटेल हैव टू बी फुलफिल्ड इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, देन ओनली अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ डायरेक्टर और अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो जो भी कंपनी के जितने डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, ही हैव टू फुलफिल ऑल दी डिटेल्स. ओके, एंड at least one woman must be a director in the company. ठीक है, like suppose अगर हमारे 4 members हैं, 4 directors हैं किसी कंपनी के, so one should be a woman, एक उसमें से woman होनी चाहिए. Okay, so now move on to the fourth, written consent and affidavit of the directors. ठीक है, तो रिटन कॉन्सेंट क्या है हमारे, एफिडेविट क्या है, कोई भी डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है वो एक रिटन कॉन्सेंट मीन्स राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा किसके पास, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, दैट आई एम विलिंगली वांट टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी.
कोई भी डायरेक्टर जो बनना चाहता है वो पर्सन, वो इंडिविजुअल क्या लिखेगा, एक रिटन कॉन्सेंट, एक लेटर लिखेगा या एक रिटन कॉन्सेंट है कि डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करेगा इन विच ही हैव रिटन दैट आई एम विलिंगली, मीन्स मैं अपनी इच्छा से इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, सो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। कन्विक्टेड मीन्स वो पहले कभी उसने कोई इलीगल वर्क नहीं किया हो या उसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ मीन्स केसेस कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल वर्क नहीं किया, कोई केस उसका रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, ओनली दैट पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट, ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। कोई भी इंडिविजुअल उसने कभी किसी से कोई फ्रॉड ना किया हो, उसके ऊपर कोई केस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड ना हो या फिर उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो कोर्ट पे, ओनली दैट पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट इज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आर करेक्ट एंड कंप्लीट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, जो भी वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के साथ, that should be clear and informative and there should be no any fraud in that document. Okay, so that is the fourth point of the incorporation of stage. Now move on to the fifth point, which is declaration. A declaration is prescribed from signed by an advocate, a chartered accountant or cost accountant or a company secretary in practice. Okay, so company secretary which you are reading SPCC आप पढ़ रहे हैं तो आपको company secretary के बारे में पता होना चाहिए. We have already read in our first chapter, first and second. Okay, so whoever is involved is in formation of the company and also signed by person named in the articles of association of a company as a director, manager or secretary of the company. ठीक है, अब declaration who want to be a chartered accountant, cost accountant or a company secretary for a company, they have to sign a document or they have to give their information to the company registrar that they are being as a name in the article of association. Article of association में हम क्या डिटेल करेंगे, डिटेल्स अबाउट द चार्टर अकाउंटेंट, अबाउट द कास्ट अकाउंटेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरी. ओके, सो दिस डिक्लेरेशन इज टू बी साइंड बाय एन एडवोकेट. ठीक है, कोई भी एडवोकेट होगा वही इस डिक्लेरेशन को सिग्नेचर करेगा. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फॉर्म्स. If any director he is interested in other companies or he is working in other companies as well and he want to become a director in any other company, so he can be working as a director in one or more companies, but he have to give a disclosure of interest in the front of the company registrar that he is already working in any other companies or he is working as a director in any company or he want to be a director in the existing company. Okay, so if the director, subscriber, manager or secretary are also associated with other firm or company, they have to give information regarding their association. उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी रजिस्ट्रार को कि मैं किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर या किसी और कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ या एज अ सेक्रेटरी वर्क कर रहा हूँ. ओके, now the last, by fulfilling the procedure of incorporation of company and the incorporation stage. Okay, by fulfilling the two stage, which is preliminary stage and incorporation stage, the company gets its certificate of incorporation. Means किसी भी कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलता है in which it is registered that the company is registered by the company registrar. ठीक है, जब हम कोई सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कर देते हैं उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. ओके, सो आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस and verification of the documents, if the registrar finds the documents to be satisfactory, he registered them and enters the name of the company in the registrar of companies. ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद करेक्ट हैं, ठीक है, फीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर दी गई है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो न्यू कंपनी एंटर होना चाहती है, जो कमेंस होना चाहती है, उसका नाम कंपनीज ऑफ
रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज में एंटर कर देता है. ओके, सो द लाइफ ऑफ द कंपनी कमेंस फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. व्हाई द लाइफ? अब जैसे कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो उसका हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं ना कि ये चाइल्ड का बर्थ हुआ, ठीक है, उस दिन से लेके फिर उसका अगर डेथ है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं कि डेथ हो गई है, ठीक है, तो इसका एक लाइफ स्पैन उसने जिया. जस्ट लाइक कंपनी, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. हम उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन मान रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक नेम दे रहे हैं. सो द कंपनी मस्ट हैव इट्स कमेंसिंग डेट एंड इट्स लास्ट एंडिंग डेट. ठीक है, तो commencing date is when the certificate of incorporation is done, then that date is known as the commencing date. मीन्स उस दिन से कंपनी का बर्थ हुआ है, उस दिन से कंपनी का जन्म हुआ है, उस दिन से कंपनी कमेंस हुई है, स्टार्ट हुई. ओके, सो द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज CIN. CIN मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. जैसे आप लोगों को GR नंबर मिला है स्कूल में, वैसे ही ये कंपनी आइडेंटिटी नंबर होता है जो कंपनी को एक आइडेंटिफाई करता है, यूनिक नंबर मिलता है कंपनी, विच इज़ ऑल्सो हेल्प आफ्टर द टैक्सेशन. द कंपनी ऑल्सो हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. एट दैट टाइम दिस नंबर इज used. Okay, so the company has to be preserve the original document and information till liquidation of the company. ओके, अगर कंपनी कभी बंद हो गई या लिक्विडिटी हो गई या फिर डिसॉल्व हो गई कंपनी, ठीक है, उस वक्त तक हमको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को संभाल के रखना पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच अ कंपनी कैन बी स्टैब्लिश्ड, अ कंपनी कैन बी स्टार्ट. ओके, सो we have finished our third chapter in SPCC, okay, incorporation of company. Okay, so hope you have understood the topic which we have done in this video, in this lecture. Okay, make the notes for the same, make the notebook also. Okay, thank you all of you.